Lift up your hands to the Lord. अपने हाथों को उठाओ सभी, उस रूह के साथ बोले, प्रभु जी टूटे मन वाले के साथ हमेशा रहता है। तेरा वचन बताता है हालेलुया, ना मैं उसे कभी तुच्छ जानता हूं, ना मैं कभी अकेला छोड़ता हूं, ना मैं कभी त्यागता हूं। हालेलुया। कहीं खुदावंद से हालेलुया, आज का वचन मेरी जिंदगी की आजादी के लिए हो। खुदावंद आज का वचन मेरे बच्चों की आजादी के लिए हो। मैं कह रहा हूं tonight it's about freedom in the name of Jesus. Though you are baptized, but still you are in the captivity, the Bible is saying and proclaiming the day has come to make you free tonight. You are free, hallelujah. You are free tonight, hallelujah. Say to God, hallelujah, I'm free. Proclaim it, claim it, say I'm free. Say I'm free. Say I'm free. Say I'm child of God. I'm child of God. I'm child of God. Somebody say hallelujah. Somebody shout hallelujah. Just give a clap of the living God, hallelujah. Oh, rasado rito rathadara. Hallelujah. The power is in the word, and the word is going to talk. Hallelujah. The word is going to rule. The word is going to lay the foundation for your future tonight. I am free. I am free. I am free. I am free. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. So let your kingdom come. Let your will be done. In Jesus' mighty name. So everyone will say, amen. Everyone will say, everyone will say, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने साथ वाले व्यक्ति को हैप्पी ईस्टर कहें, हैप्पी रिजरेक्शन कहें। Wonderful. God bless you. 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 Hallelujah. Greet. हाँ बोलो 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 बोलो. Greet करो सबको. Hallelujah. It's better to greet everyone. It's better to greet everyone. Say to God, Hallelujah. Say to God, Hallelujah. God, I'm in your presence. मिलो मिलो मिलो. जल्दी 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 जल्दी. Praise God. पीछे वाले आगे आने चाहिए, पीछे वाले बाहर नहीं जाने चाहिए। दरवाजा बंद कर दो, अब जब तक वचन नहीं खत्म होता कोई बाहर नहीं जाएगा। आ जाओ अंदर। Praise God. Just give a clap of the living God. Hallelujah. Wow, what a day, what a day. I'm very happy, I'm very delighted because the God is going to give us a new opportunity tonight. आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि खुदावंद हमें एक नया मौका देने जा रहे हैं। कितने लोग गुड फ्राइडे में आजाद हुए हैं? How many people got freed on Good Friday? कितने लोग गुड फ्राइडे में आजाद हुए हैं? How many people are free? आज अथॉरिटी का दिन है यीशु मसीह के नाम से। Today is a day of authority in the name of Jesus. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन मुबारक है क्योंकि परमेश्वर आपको भरना चाहता है। You must know that today is a blessed day because God wants to fill you up. जो भरेगा वो शैतान को हराएगा। The one who will be filled will defeat Satan. मैं कह रहा हूँ आज आपका टर्न आ चुका है। हालेलुया। Now it's your turn. शैतान कहता है मेरी बारी है, तुम्हारी बारी है। Satan says it was mine but it is yours. आज तुम्हारी बारी है, सुनना चाहिए। हालेलुया। It's your turn in the name of Jesus. आपके बच्चों की बारी है अब। हालेलुया। It's your children's Your turn. family turns comes now. हालेलुया। आपके खानदान की बारी आ चुकी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। I'm very happy tonight and because the great power is in our midst tonight and I believe that power will transform each and every situation. आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक बड़ी सामर्थ हमारे बीच में है और वो सामर्थ वो ताकत हमें बदलने वाली है आज। आज सभी बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। All of you are looking good, beautiful. हर संडे सुंदरता लग क्या करो। Look beautiful every Sunday. मैंने भी अच्छा लगता है। I like it. क्योंकि इधर तुसी मैनू ही देखते हो, मैं सारे नु देखना है। Because when you look at me, I can look at you all. Somebody say, और जोर से बोलो, हालेलुया। ये खुशी हमेशा आपके जीवन में रहे। This happiness should be everlasting. मैं कह रहा हूँ कि ये खुशी आपके जीवन को और ऊंचा करेगी अब। Let this happiness exalt your life. Somebody say hallelujah. Are you ready for the word of God? शैतान को हराओ, जोर दी बोलो। Hallelujah. हालेलुया। तैयार हो वर्ड के लिए?
एक बार याद रखना कि आज का वचन जौन सा है आपकी जिंदगी को एक बहुत अच्छी रीति से बदलेगा वो आज। Remember that today's word will transform your life very greatly. चाहे आपको वचन बहुत नॉलेज हो, चाहे आपको वचन बहुत पता हो, पर परमेश्वर आपको एक गहराई में उतारेगा आज। Though you know word very deeply, but still the word will take you deeper than you have. Today is resurrection day. आज जी उठने का दिन Death है। could not hold him. मौत उसे पकड़ ना सकी। जोर से बोलो, आपकी बीमारियां अब आपको पकड़ ना पाए आज। हालेलुया। Let not your sickness hold on you. गरीबियां आपको ना पकड़ पाए अब। हालेलुया। उदासियां आपको पकड़ ना पाए अब। मुश्किलें आपको पकड़ ना पाए अब। लानत पकड़ ना पाए अब। ओ यीशु मसीह के नाम से Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। That's how we worship. Hallelujah. ऐसे हम उसकी प्रस्तुति करते That's how हैं। Ray of Hope Punjabi Church worship. Hallelujah. ऐसे रे वो पंजाबी चर्च उसकी प्रस्तुति That's how we करता है। proclaim it. Hallelujah. जैसे हम इस बात का अंगीकार करते शैतान हैं। तो साढ़े नेड़े नहीं लगता Satan कदे। cannot come near to us. ओ जोर दी जूदा दे बब्बर शेर दे पुत हो, जोर दी बोलो। You are a child of a line of Judah. Say loudly. Hallelujah. Let's tell the word of God. It's very precious, very important. Let's give a space in your life because God is going to change many things. आज का कलाम बहुत important, बहुत ही कीमती है। इसे अपनी जिंदगी में जगह दीजिए क्योंकि बहुत चीजों को बदलने वाला कितने है। लोग अपने दिल के deep down in their heart वो बहुत उदास हैं। How many people are sad deep down in their heart? शक्ल से सब कुछ पता लगता है। We can see at your face. जो अंदर है वो शक्ल बताती है। That's inside of you. Your face will reveal it. खुश रहा करो। Be happy. जोर दी। जेड़ा बंदा अंदरों खुश है बाहरों भी खुश है। The one who is happy inside is happy outside. Somebody say, खुदा कहता है कि आज मैं आ गया हूँ, कब्र को तोड़कर आ गया हूँ, आज मैं तुम्हें आजाद करके ही भेजूंगा। Jesus says that I have broken that tomb and I am in the midst of you so that I may change you. वो आया है आपको बदलने के लिए, He is here to transform आया you. है आपको ऊंचा करने के He लिए, is here to lift you वो up. आया है आपको सिर बनाने के He लिए, is here to make you head. आया है आपको मजबूत बनाने He के is लिए। here to make you strong. आपके बच्चों का फ्यूचर ब्लेस है आज से। And the हालेलुया। future of your children is blessed. Today in the morning when I was praying, the God spoke to me clearly. आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था खुदा ने उससे बात की। चाहे कोई भी आज या कोई भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, जो कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आज यीशु मसीह के वचन को सुन रहा है, if you are listening the word of God, उनके बच्चों का फ्यूचर ब्लेस है। हालेलुया। the future of the children is blessed. Somebody say हालेलुया। उन बच्चों की वजह से वो परिवार बचाया जाएगा। And through those child, your family will be saved. Somebody say, जोर से बोलो। आज हम एक तीन चीजें सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इस रेजरेक्शन डे को खास क्यों बनाया हमारे लिए। We will look at three things that how Jesus make this resurrection day so important for us. वचन में लिखा है कि जी उठने का वक्त वो वक्त था कि परमेश्वर ने हमारी सभी मुश्किलों को, हमारी बीमारियों को, हमारी लानत को, हमारी शर्मिंदगी को उस कब्र में ले लिया। Resurrection day means that Jesus took all our curses and all the bad things and all the curses that we have into that grave. Somebody say, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं कल से नहीं डरूंगा, I won't be scared of tomorrow मेरे बीते हुए कल से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। because I have learned a lot from my yesterday. जोर से बोलो। आज अब आप कल से नहीं डरोगे, Now you will not be scared of आपके tomorrow बीते हुए कल ने आपको बहुत सिखा दिया है। because your past has taught you a lot. आपके बीते हुए कल ने आपको ऊंचा बना दिया है। Your past has lifted you up. आज रेजरेक्शन का दिन है। Today is a day of resurrection. परमेश्वर अपनी खुशी में लेकर चलेगा आपको। God will make you walk in परमेश्वर आपकी happiness. हिम्मत में लेकर चलेगा। He will make you हालेलुया। walk in strength. Somebody say, जोर से बोलो। बाइबल में लिखा, वचन में लिखा, जब यीशु मसीह को कब्र में डाला गया, Bible says that when Jesus was put into that tomb, जो यीशु मसीह के जितने लोग थे, जितने शागिर्द थे, वो बहुत घबरा गए थे, वो डर चुके थे। and all the disciples of Jesus Christ were so scared. वो डर चुके थे कि हमारा उस्ताद, हमारा गुरु अब नहीं रहा। They were scared that their teacher is not there. उनको लगा कि अब हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम ऐसा सहायक नहीं है जो कि हमें उत्तेजित कर सके, हमें ऊंचा कर सके। They thought that there is no one that will lift them up and help them. जितने शागिर्द थे वो ये सोच रहे थे कि अब हम अकेले पड़ चुके हैं। And all the disciples were thinking that they are alone. पर यीशु मसीह ने उनसे पहले ही वादा कर दिया था, But Jesus already made a promise मैं with them 30 दिन मुर्दों में जिंदा हूँगा। that I will rise again after 3 days. Somebody say hallelujah। जोर से बोलो। मायूस वही लोग होते हैं जो वचन भूल जाते हैं। People who forget the word are sad always. मायूस वही लोग होते हैं जो वचन पे तवज्जो नहीं देते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ध्यान दोगे परमेश्वर का वचन आपको दोबारा खड़ा करेगा। The one who don't care about the word and don't give any attention to that, they are always sad. Somebody say hallelujah।
फकीर फरीसियों ने सिर्फ 3 चार्जेस लगाए यीशु मसीह, उन 3 चार्जेस की वजह से यीशु मसीह को स्लीप पर चढ़ना पड़ा। Sadducees and Pharisees were put those 3 charges on Jesus Christ, and due to those charges Jesus was put on the वो सिर्फ cross. 3 चार्जेस के कारण यीशु मसीह को स्लीप दी गई। Due to those three things, Jesus was given a cross. Somebody say hallelujah. और कोई कारण नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ, वो कोई कारण नहीं था, वो सिर्फ 3 कारण थे यीशु मसीह को इतनी खतरनाक, इतनी भयानक एक सजा मिली उस वक्त। There wasn't any other reason, according just those 3, that Jesus was given such a brutal death. Somebody say hallelujah. आपके भयानक से भयानक सिचुएशन आज खत्म होंगे। All the brutality of your life will be finished आपके tonight. भयानक से भयानक चैलेंजेस आज खत्म होंगे। All the brutal challenges will be ended. Somebody say, आपको लगेगा कि इससे बुरा क्या हो सकता है। You will think that what will go bad other than that. इससे बुरा तो मैं देख चुका, पर इससे बुरा और कुछ नहीं होगा I मेरे have साथ। seen a lot. What bad can happen now? मैं कहता हूँ आपके साथ जितना बुरा होना था हो चुका, अब नहीं होगा। Whatever had happened, it had not जितना anymore. होना था हो चुका, परमेश्वर अब आपके लिए एक नई जीत लेकर आया है। Though that is gone because Jesus has आप brought a new victory. एक्सीडेंटली चर्च में नहीं आए हो। You are not here for that thing on for church. It's a plan of Jesus Christ. ये यीशु का वो मकसद है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैंने सुबह एक भाई से बात कर रहा था, I was talking to one brother this morning, and he said, Pastor, अब आप फास्टिंग प्रार्थना कब कर रहे हो? और उसने कहा कि Pastor, when are you doing the fasting prayer? मैं कहा 30 दिन दी फास्टिंग मुक गई है। I told him that the 30 days fasting is gone. शुरू करांगे। We will start it. ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? Are you ready? मैं कि मैं अपनी कलीसिया ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, Are you ready? 1 2 3 4 5 6 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। Can we start a 30-day fasting again? Are you ready? Are you willing? आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी प्रार्थनाओं से बहुत लोग जकड़े थे, आजाद हो चुके हैं। By your prayers, many people are free indeed. ये ब्लेसिंग बाउंस बैक करके आपकी तरफ आती है। And that blessing will bounce back and comes to you. परमेश्वर का वचन कहता है जो बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। Word says that the way you sow, the way you reap. अगर आपने परमेश्वर का बोझ उठाने का सोच लिया है, खुदावंद तेरा बोझ उठाने की इच्छा रखता है। If you have decided to take God's burden, then God is interested to take your burden. Somebody say hallelujah. Let's see the 3 charges, and 3 charges are the 3 victorious things that God is going to speak it about. और ये उन तीन इल्जामों की तरफ देखिए, और वो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमें ताकत दी। Let's see the first one, why they just gave them such kind of brutal death, because he loves sinners. कि उन्होंने यीशु को इस तरह की भयानक मौत दी कि उसको एक गुनाहगारों में गिना गया। क्योंकि वो गुनहगारों को बहुत प्यार करता था। Because he loved sinners. Somebody say, जोर से बोलो। आपको बता दें, एक बात समझने वाली है, यहाँ पे वचन एक बहुत गहराई में हमें बताना चाहता है। Listen very carefully, because word is going to tell something in very. उस वक्त में जिनको कोई ऐसी भयानक बीमारी होती थी, they tried to put that person out of the society. And at that time, when someone got that fearless disease, they were thrown out from that society. और उनको सोसाइटी से बाहर रखा जाता था। And they were placed outside of that society. उनको अशुद्ध माना जाता था। They were considered untouchables. और वो सोसाइटी में एंटर नहीं कर सकते थे। And they were not allowed to enter into the और वो society. उन लोगों के बीच मिंगल नहीं कर सकते थे। And they could not meet those people at all. समझ से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब ऐसा नहीं होता है। No, it's not like that. आप बीमार हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप सब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। If you are sick, whatever is happening, we pray together. जोर से बोलो। कईयों का दुख बाहर दिखता, कई अंदर लेके बैठे हुए हैं। Many people sort of seen outside, but many are taking it inside of them. इंसान नहीं देख सकता, पर परमेश्वर देख रहा है आज। A person cannot see that, but God can. परमेश्वर फाउंडेशन को हिलाने जा रहा है। God is going to shake the foundation. Somebody say hallelujah. फ्रूट मीठा होगा यीशु मसीह के नाम से। There will be a sweet fruit. Somebody say hallelujah. Because बाइबल में लिखा है he loves sinners. और कलाम में कहता है, लिखा है कि यीशु गुनाहगारों को प्यार करता Who था। are sinners tonight? कितने गुनहगार हैं आज? How many are sinners? पादरी साहब, पापी बंदे हैं, किथे जाइए? और जोर दी बोलो। Are you sinners still? क्या आप अभी तक गुनहगार हैं? बजाओ ताड़ी जोर दी। हालेलुया। पादरी साहब, कल ही हफ्ते गुस्सा बहुत आया सा। आज मैनू माफी चाहिए है। बोलो जोर दी।
जोर से बोलो, ध्यान से समझना इस बात को। बाइबल से he loves sinners। Listen carefully, कलाम कहता है कि वो गुनहगारों को प्यार करता था। कहते वो गुनहगारों को प्यार करता है। And he loves sinners now। अब समझो, अगर आप अपने आप को गुनहगार मानते हो, पहले अपने आप के गुनाह को अपने जिस्म से निकाले, अपनी जिंदगी से निकाले, खुदावंद के जल्लाद को देखने वाले बनोगे। And if you consider yourself a sinner, take that sin out of your life, and then you will see the Never glory of say God। you are a weak personality। कभी ना कहीं कि मैं कमजोर हूँ। Never say that you have done something wrong, so आप negative situation में खड़े हो अब। कभी ना कहिए कि मैं I have done something wrong और मैं उस negative Every situation end is a new beginning in Jesus Christ। हर एक आखिरत एक नई शुरुआत के साथ ही Oh, होती है। समझ से हालेलुया। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाओगे। If you don't love yourself, you cannot love God। पर कई लोग अपने आप से नफरत करते हैं अपनी बीमारी के कारण, But many people hate themselves just due to their disease, अपनी कमजोरी के कारण, due to their weakness, अपने ख्यालात के कारण, due to their thoughts, अपनी मेंटालिटी के कारण। their mentality। They don't love themselves। वो अपने आप से प्यार नहीं कर जो सकते। व्यक्ति अपने से प्यार नहीं करता, वो किसी से प्यार नहीं कर The सकता। one who cannot love himself, he cannot love वो anyone। परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं कर He सकता। cannot love the word of God। वचन में लिखा he loves sinners। वो गुनहगारों को प्यार वहां पे करता एक था। दायरा बनाया हुआ था, And there was one circle, और वहां पे दायरे में वो उन लोगों को रखा जाता था। and the people were taken out पर of their यीशु boundaries। मसीह दायरा तोड़ के उनके पास पहुंचा। But Jesus went to those people, उन्होंने उस कानून की उल्लंघना की। यीशु मसीह ने कानून की उल्लंघना and की। Jesus just break those laws। He just violated that. Hallelujah. वचन में लिखा है कि फरीसी सदूसी रोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा कानून था, जिनको उन्होंने अलग किया है, तो वहां पर जाना भी नहीं है आपको। And there was a law for Pharisees and Sadducees that if they have made a boundary, no one is allowed to go to those people। Somebody say, the problem यहाँ पर एक चीज की प्रॉब्लम है, जितने लोग डिसाइड नहीं कर पाते वो कभी ऊंचे नहीं होते। Now the problem is that people who cannot decide, they are never be lifted। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि मैं कभी शराब में नहीं चलूंगा, मैं कभी शराब पीते होगा, कोई शराब तुम्हें छू नहीं पाया। If you have decided that no curse can touch me, no curse will touch you। Jesus decided to take that cross। यीशु ने उस क्रूस को लेने का कि फैसला आप किया। डिसाइड करते हो कि आज के बाद मैं अपने आप को कभी कोसूंगा नहीं। Do you decide that I will never curse myself? कभी आप डिसाइड करते हो कि मैं अपने आप को कभी अपने आप को नीचा नहीं दिखाऊंगा। Do you decide that I will never let myself lay The down? problem you are tonight, you are अपने आप से इतने irritated हो, अपने आप से इतने गुस्से हो, अपने आप से इतने खफा रहते हो, क्योंकि आप अपने आप को प्यार नहीं करते। Because Bible says God loves sinners। The problem is that you are always angry because you don't love yourself, but Jesus loved sinners। Somebody say hallelujah। जोर से बोला hallelujah। हम यही सोचते हैं कि मेरे से बड़ा कोई किसी ने गुनाह ही नहीं किया। We are always thinking that my sin is bigger than anyone that अगर आपसे सबसे बड़ा गुनहगार अगर मेरे को खुदा बचा सकता है, तो आपको भी बचा सकता है। If God can save me, God can save you। तब सब तो पैड़ा मैं ऐसी का। And I was the baddest among all of you। Somebody say, खुदा मुझे बदल सकता है, तो आपको जरूर बदलेगा। If God can change me, Somebody say hallelujah। जोर से बोलो hallelujah। कन्फेस करो इस चीज के लिए, पहले अपने आप को कहो कि खुदावंद मैं अपने आप को कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। confess it and say that God, I will never make myself be into the pit। इसी कारण से यीशु मसीह पर चार्ज लगाया गया, because he loves sinners। वो हमारे कानून को वायोलेट करता है, इस करके इसको सजा दी जाए। And they put charge on Christ because he loved sinner, and they say that he is violating our laws, so he may be punished। Somebody say hallelujah। जोर से बोलो hallelujah। जब आप अपने आप से नफरत करते हो, जब अपने आप को कोसते हो, तब आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग से, उसकी प्रेजेंस से निकलना शुरू कर देते When you हो। hate yourself, when you curse yourself, only then you make yourself out from जब God's आप presence। परमेश्वर की अनॉइंटिंग से, उसकी प्रेजेंस से निकलोगे, तो शैतान आपको उस गड्ढे में रखेगा, वो आप से बाहर नहीं निकल पाओगे। When you're away from God's presence, Satan will take you into that pit so that you may never be taken out। आज हर दरवाजा जो आपके सामने बंद है, टूट चुका है यीशु मसीह के नाम Every से। door that is in front of you is broken in the name आज of कोई भी Jesus। दरवाजा आपके सामने नहीं है। हालेलुया। No problem is in front of you। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं कब्र को तोड़कर वापस आया हूँ। And Jesus हालेलुया। said that I have broken that tomb and came मैं out। मौत को शर्मिंदा करके आया हूँ। I have put death on shame। उस लानत को शर्मिंदा किया I है have मैंने। put that curse on shame। आपकी बीमारियां शर्मिंदा होंगी, And your sicknesses will be आप shamed। ऊंचे होंगे, You will be lifted आपके up। बच्चे ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। children will be वो blessed। जोर दी। हालेलुया। That was a charge। हालेलुया। ये वो इल्जाम था। जोर से बोलो। आपको वचन में लिखा, जो 12 साल से एक औरत जिसका खून बहता था, And the word says that there was a woman who was bleeding since 12 years। उसको सोसाइटी से अलग किया गया था। She was taken out from the society। She cannot come into the society। वो उन लोगों में नहीं आ सकती थी। She really wants to, but actually कानून ऐसा बन चुका था। वो चाहती थी, but there was a law।
पर उसने डिसाइड किया, but she decided. अपने आप को कवर अप किया, She covered herself. अपने चेहरे को कवर किया, She covered her face. अपनी शर्मिंदगी को कवर किया, She covered her shame. अपनी बीमारी को कवर किया, And her sickness. अपने कवर करके वो भीड़ में आ गई। And he went into that crowd. She decided. उसने फैसला किया। Are you going to decide tonight? आप फैसला करने के लिए तैयार हैं? Are you going to decide tonight? आप फैसला करने के If लिए you're तैयार ready to decide tonight, हैं? अगर आप तैयार हैं, if you're ready to decide tonight, अगर आप तैयार हैं, Satan decide नहीं कर सकता आपका future, आपकी destiny। Satan cannot decide your future. आपका परमेश्वर decide करेगा आपका Only your future। God will decide it. परमेश्वर का आत्मा decide करेगा। His Spirit will decide. मैं कहता हूँ कोई इंसान decide नहीं कर सकता। No human can do कोई that. व्यक्ति decide नहीं कर सकता। No human can do that. कोई ऐसा इंसान decide नहीं कर सकता आपको क्या बनना होगा। No human can decide what you should do. और somebody say, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। No witchcraft can overcome us. ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। No witchcraft can overcome us. ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਏ। Many people tried it, but it was bounced back to them. जोर से बोलो, जोर से बोलो। समझो वचन में लिखा वो औरत उस भीड़ में पहुंची। Now understand that a woman got in the part of that crowd. जब वो भीड़ में गई, When she was वो there, डरती डरती गई, and she was so scared, उसे डरते डरते उसके पल्ले को छुआ। trembling, she touched the flock of Christ. जब उसके हेम को पकड़ लिया, उसे छू लिया, तो अचानक ही यीशु मसीह स्टॉप हो गए वहां पर। When she touched him, touched the flock, he was just stopped. But she decided something to do। उसने फैसला किया कुछ आप करने। डिसाइड कर आए हो तो आज ऊंचे होकर ही वापस जाओगे। And if you have decided, you will go back lifted up. अब बोलो मेरा पास्ट मुझे अब तोड़ेगा नहीं। My past cannot break me. मेरा पास्ट डिसाइड ना करे मैं कौन हूँ। My past should not decide what I am. प्रेजेंट डिसाइड करे अब मैं कौन हूँ। Let my present decide. फ्यूचर डिसाइड करे मैं कौन हूँगा। Let my future decide who I am going to be. Somebody say hallelujah। ओ जोर से बोलो हालेलुया। चाहे डॉक्टर जितने मर्जी आपके बारे में बोलते हैं, लोग आपके बारे में जितने मर्जी बातें बोलते हैं, चाहे सोसाइटी आपके बारे में जितनी बातें बोलते हैं, परमेश्वर जो बोल रहा है वही होने वाला है। अब Though हालेलुया। doctor is talking a lot for you, though society is talking a lot of you, but God says what I have decided will be done for उसे you. पता था अगर किसी को पता लग गया तो पत्थर मार मार के मार देंगे मुझे। And she was trembling that if and people will know, they will stone me to death. पर उसने डिसाइड किया। But she decided. Somebody say यीशु मसीह ने डिसाइड किया है कि तुम्हें वो आजाद करेगा। वो Jesus has decided to give you आपके freedom. बच्चों को आजाद करेगा। वो And your children. आपके लोगों को आजाद करेगा। And your people. और समझ से हालेलुया। उसे दायरे को तोड़ दिया। And he has broken that boundary. And that was a charge। और वो एक इल्जाम था. ये इल्जाम था यीशु मसीह पर। That was a charge on Jesus ये Christ. इस चार्ज की वजह से उसको स्लीप दी जाए। And due to that, he should be punished जो on cross. कानून हमने बनाया है, ये कानून को उसने तोड़ दिया। Because we have made that law and he's violating it. Somebody say, let's see the second charge। The second charge, he healed sick people on Sabbath। वो सबत के दिन बीमारों को चंगा करता था. ये एक बहुत बड़ा चार्ज था। And this was a big charge. Somebody say, यीशु मसीह ने इस कानून को बनाया, इस कानून को परमेश्वर ने रचा, इस कानून को मूसा के द्वारा बिल्कुल सभी रीति से इसको मजबूती के साथ लोगों में बांट दिया। And since the time of Moses, this law was made, and that law was replicated to the people by God. परमेश्वर ने कानून बनाया। God made this law. अब यहाँ पर परमेश्वर का ये कानून परमेश्वर के सामने खड़ा है। And now this law is standing against God. और वचन में साफ लिखा है कि he started healing people on Sabbath। और लिखा है कलाम में कि यीशु ने सबत के दिन लोगों को चंगा किया. और ये सबसे बड़ा चार्ज था कि इसने कानून को तोड़ दिया है। And it was the biggest charge that Jesus is violating those laws. Somebody say hallelujah। जोर से बोल हालेलुया। कानून वैसे था और वैसा ही रहा। And the law was the same as the पर law. यीशु मसीह ने एक काम किया। But Jesus did one. ध्यान से सुनना आप कलाम को आज। जोर से बोलो। यीशु मसीह ने देखा जो सबत में होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। And Jesus was looking that what has to be done on Sabbath is not been happening. आज कितने लोग चर्च चलाते हैं और चर्च चलाते एक रिचुअल की तरह है, एक सेरेमनी की तरह है, एक रीति की तरह है, एक रीत की तरह कंटिन्यूसली चल रहा है। Many people are running church and it is like a ritual and it is going on and on. अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपकी शर्मिंदगी आपके पास नहीं होनी चाहिए। If you are a Christian, then your shame should not be with you. Somebody say, अगर आप एक मसीह इंसान हो तो मिरेकल आपका हिस्सा है। And if you are Christian, then the miracle is a part of your life. Somebody say hallelujah। एक विश्वासी इंसान जो यीशु मसीह पे ईमान रखता है तो आप ना बोलो, आपकी बरकत बोलनी बहुत जरूरी है। If you believe in Jesus Christ, then you should not speak, but let your blessing speak. Somebody say hallelujah। जोर से hallelujah।
यीशु मसीह ने सब्बत में लोगों को चंगा क्यों किया? Why did he heal people on Sabbath day? क्योंकि कई लोग चंगे नहीं हो रहे थे। Because many people were not healed. सब्बत को इतनी पवित्रता थी, ऑब्जर्व किया जाता, फिर भी लोग चंगे नहीं हो रहे थे। And Sabbath was considered a holy day, but people were not being healed. सब्बत को इतनी पवित्रता के साथ वो अपने जीवन में अध्ययन कर रहे थे, लोग इतनी प्योरिटी के साथ अध्ययन कर रहे, फिर भी चंगे नहीं हो रहे थे। They were celebrating the day of Sabbath so purely, but people were not being healed. चर्च पे चर्च बन रहे हैं, खड़े खुल रहे हैं, पर आज भी वो मुक्ति और salvation उनके जीवन में नहीं आ रही है। And there has been church and churches establishing every day, but there is no salvation and deliverance. Oh, somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. ध्यान से सुनो बात को। Listen carefully. वही व्यक्ति चर्च में बंदगी कर सकता है जो हील्ड हो जाए। Only that person can worship in church who is healed. जो व्यक्ति हील्ड नहीं है वो कभी वर्शिप नहीं कर पाएगा। The one who is not healed will never worship. जोर से बोलो, क्योंकि जब तक आप हील्ड नहीं हो, अपने खुदावंत की रूह और सच्चाई से बंदगी नहीं करोगे आप। If you are not healed, you will not worship by the Spirit and truth. आपको अपना दुख सताएगा, Your pain will tease आपको you. अपना पास सताएगा, Your past will tease आपको you. अपनी परेशानी सताएगी। Your troubles will tease you. वचन में साफ लिखा ज़ुबूरों में, जिसका मन मायूस रहता है, वंचित रहता है, वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। Psalms clearly says that the one who is sad is not able to worship जो God. टूटा रहता है, जो बिखरा रहता है, जो गुलामी में रहता है, वो कभी परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ नहीं चल सकता। The one who is broken, the one who is scattered, the one who is in captivity can never go in presence of God. वचन में लिखा परमेश्वर का इनको हील्ड होना बहुत जरूरी है। Word clearly says that these people must be healed. अगर सब्बत आपके जीवन में पवित्र है तो आपके जीवन में मिरेकल होना बहुत जरूरी है आज। If Sabbath is holy in your life, then there must be a miracle in your life. समझ से हालेलुया, जोर से हालेलुया। उसने कहा कि ये लोग चंगे नहीं है, ये कैसे आराधना कर सकते हैं? He said that those people are not healed. How can they worship आप me? चर्च आते हो, चर्च जैसे आते वैसे चले जाते हैं, जैसे आते वैसे चले जाते हैं, जैसे आते वैसे चले जाते हैं, आप कभी आजाद नहीं हो पाओगे। You come to the church and go back same always, and due to this you will never be healed. जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर दी, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो समझ जाओ आपके जीवन में मिरेकल्स होने, गवाहियां होनी बहुत जरूरी हैं। If you are a child of God, then understand that there must be miracles in your life. एक मिरेकल हमारे सामने बैठा है। We can see one miracle with our eyes here. जोर दी बोलो, ब्रदर नॉरिस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख सकते हैं व्यक्ति को जो व्हील चेयर में बैठे हैं। He was in ICU. Doctor claimed he's dead. इन साहिब को देखिए जो व्हीलचेयर पे बैठे हैं, डॉक्टर्स ने इनको कह दिया था कि ये बचने वाले नहीं हैं। That night God changed the reports. उस रात खुदावंद ने रिपोर्ट्स को बदल डाला था। That night God said, I am who I am. उस वक्त खुदावंद ने कह दिया था, मैं हूँ जो मैं हूँ। जो मैं हूँ मैं कर सकता हूँ। What I am able to do. Oh somebody say, oh जोर दी बोलो, अगर एक व्यक्ति को खुदावन मौत से निकाल सकता है, आपकी तो मुश्किलें कुछ नहीं है। If you can take one person out from the death, what your problem is then? शैडो में से निकल जाओ, शेड में से निकल जाओ, उस धुंधलेपन से निकल जाओ, आजादी आपका वेट कर रही है। Take yourself out from that shadow, take you out from yourself, that's from the clouds and death, because this shame is not for you. समझ से हालेलुया। जो व्यक्ति अपने जीवन में मिरेकल रिसीव नहीं करता, वो कभी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा। One who never receives a miracle in their life, they can never worship तभी God. यूहन्ना और पतरस जब आफ्टरनून में उस दोपहर को जब प्रार्थना करने के लिए आराधनालय जा रहे थे, That's why John and Peter, when they were going to the synagogue to worship, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि जन्म से अधरंग था, वो क्रिपल था, वो चल नहीं सकता था। they saw a person who was crippled by birth. कहाँ बैठा था वो? Where he was sitting. जो बाइबल पढ़ते हैं, हाँ कहाँ पर? दरवाजा जो खूबसूरत कहलाता है, चर्च जो बहुत बड़ा है, चर्च जो बहुत सुंदर है, चर्च में लोग चंगे कपड़े पा के आते हैं, वो वाले चर्च के बाहर बैठा था। And he was sitting outside of a church who was called So Beautiful, where beautiful people were coming in. होना तो उसको चर्च के अंदर चाहिए था, पर वो बैठा कहाँ है? He has to be in a church, but he's sitting outside हील्ड नहीं है ना वो। because he's not healed. जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप जब तक आपके जीवन में हीलिंग नहीं है, चिंगाई नहीं है, आप खुदावन के सामने नहीं खड़े हो सकते। If there is no healing, then you cannot face God. वचन में लिखा है कि यूहन्ना और पतरस वहां पे पहुंचे, Written that John and Peter went there, और जहां पे वहां पहुंचे तो उसने उसे आज से कुछ मांगा। and that crippled man looked at them and यूहन्ना asked, और पतरस ने उससे कहा, and John and Peter told him, सोना चांदी पैसा हमारे पास नहीं है, we don't have gold, silver or money. जो हम तुझे दे सकते हैं वो तुझे लेना पड़ेगा। The thing that we can give you, you should take it. जोर दी, हालेलुया। आपके मन में क्या चल रहा है ये समझ लो आज। What's inside of you, just think of it. आपको पता आपकी हीलिंग क्यों नहीं होती? Do you know why you're not healed? आपके अंदर कुछ और चल रहा है अभी। Because there's something else inside आपकी of you. चिंगाई क्यों नहीं हो रही? Why you're not आपको healed? मिरेकल क्यों नहीं मिल रहा? Why you're not getting आप कुछ miracle? और सोच के बैठे हो। Because you're thinking something else. जोर से बोलो,
अब आपके अंदर पता क्यों नहीं होती? आप लग रहा है कि अगर मुझे खुदा ब्लेस करे तो मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ अब। And you are thinking that if God will bless me, I will make someone down. मेरे को 2 घर है, मेरे को भी 4 होने चाहिए थे। He has 2 cars, I must have 4. नहीं, कार तो चलो। He have 2 houses, now I must have 4. Somebody say, जोर दी बोलो, आप क्या सोचकर हीलिंग चाहते हो आज? What are you thinking and want to get a healing? और जोर से बोलो, वचन में लिखा यूहन्ना पतरस ने देखा उसे, And John and Peter looked at him. उसे कहते हम तुझे एक वचन देते हैं, And they told him that we are going to give you word. यीशु नासरी के नाम से चलना फिरना शुरू हो जा। Get up in the mighty name of Jesus and walk. Somebody say, जोर से बोलो, उसके गिट्टों में जान आ गई। And his knees were getting वो stronger. खड़ा हुआ। He stood up. वो कहाँ भागा फिर? Where did he run in? वो अपने रिश्तेदारों में मिलन गया? Did he run to meet his relatives? नहीं, मैं अपने पुआ दे मुंडे नु मिलिया मैं जाके। हाँ जी, कनाडा तो आई है। जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। नहीं, मैं अपने भरावां नु मिलिया मैं जाके हुण। Did he went to his brothers? नहीं, मैं अपनी जॉब को देखो, मैं बिजनेस को देखो कैसे चल रहा है। Did he went to his business and job? जोर दी बोलो। वचन में लिखा परमेश्वर ने उसको नई बरकत दी। And the word says that God gave him a new blessing. वो चर्च के अंदर भागा। He went into the synagogue. जोर से वो कह रहा कि मैं चर्च के अंदर जाऊंगा अब। He went in. वो क्या कहता, मैं अपने लोगों को मिलने नहीं जाना चाहता। I don't want to go and meet my people. आज भी यही प्रॉब्लम है, हमें ब्लेसिंग मिलती है, हमारा डायरेक्शन कुछ गलत है। Now the problem is that when we are healed, but our direction is हमें wrong. मिरेकल मिलता है, हमारा डायरेक्शन गलत है। We get miracles, but our direction हमें is wrong. छुटकारा मिलता है, हमें टाइम मिलता है, हम दूसरा बिजनेस खोल लेते हैं, बल्कि ये नहीं कि उस वक्त में हम परमेश्वर को भी टाइम दें। अब We are free, but when we get the blessing, we open another business, but we हमें don't give लगता है कि time to God. नहीं, खुदा ने कि नहीं ओपनिंग देती, चर्च तो चलता ही रहता है, कोई गल नहीं, इन्हें शुरू करो। We say no, that we have a new opening, let's take care of it. ओ जोर दी बोलो, आप क्या सोचकर हीलिंग चाहते हो आज? What are you thinking and what's आपका the healing? थॉट आपके अंदर जो चल रहा है ना, वो ही आपको नीचा कर रहा है आज। That's going inside of you is taking you down. तभी आप चंगे नहीं हो रहे हो, That's why you're not healed. तभी मिरेकल नहीं हो रहा That's है। why there is no miracle. आपको लगता है कि चंगा हो जाऊंगा तो मैं केड़ा चर्च, मेरी रूटीन तो वही चलनी है। And you think that if I'm healed, but the routine will be the same, why should I go to church? बोलो जोर से बोलो। वचन में लिखा कितने लोगों को खुदा ने चंगा किया, The word says that how many people God कितने लोग saved. श्रापित भी हुए हैं, Many people were cursed. कितने लोग श्रापित हुए, कितने लोग हमेशा की चिंगाई के साथ वापस गए हैं। Many people were cursed, but many people went back with an everlasting life. आप ये सोच के आए हो, खुदावन तू मुझे आजाद कर, मैं तेरे चर्च में सेवकाई करने वाला बनूंगा आज। You are here and you must think that God heal me and I will serve याद you. करो वो मोहब्बत को, जो मोहब्बत पहली थी आपकी। Remember that the love was first. याद करो वो प्यार, वो टाइम, वो वक्त, वो समय, वो फास्टिंग प्रेयर, वो वचन का पढ़ना, वो गीत भजन गाना, वो वक्त कहाँ गया अब आपके जीवन में? Remember that love, remember that time, remember that prayer that was first. कहाँ गया वो वाला पल आपके जीवन में? Where did it go? यीशु मसीह उस चीजों को दोबारा वापस करने के लिए आया आज। Jesus हालेलुया। is here to bring those things back to वो you. कहता है, मैं तुझे दोबारा वो रुतबा देता हूँ आज, And he says that I will give those things back मैं to तुम्हें you. दोबारा शौहरत देता हूँ। हालेलुया। I give you one मैं money and अपने wealth. आत्मा का मसा तुझे दोबारा देता हूँ। I हालेलुया। give you my anointing Oh, again. are you ready for this? क्या आप तैयार हैं? और सब से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उसको अगर परमेश्वर आपको मिरेकल दे तो आप क्या करोगे आज? If God will give you miracle, what will you do? कभी तभी खुदा मिरेकल नहीं करता, कभी खुदा बरकत नहीं दे रहा हमें। That's why God is not giving us miracles, not blessings. Somebody say, that was a charge that God has it. वो एक इल्जाम था जो यीशु पे लगाया गया था. That's a third charge. आइए तीसरे He इल्जाम की considered himself a son of God. तरफ. वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता That was a था. blasphemy according to the Pharisees and Sadducees. और वो सदूकियों के मुताबिक एक बहुत बड़ी बदतमीजी थी. आपको समझो, एक बात को मैं बताता हूँ, पर मैं उनको ये भी पता था, उनको शरा के अनुसार, उनको कानून के अनुसार, उनको तोड़े के अनुसार, इस मूसा की व्यवस्था के अनुसार, डैनियल की प्रोफेसी के अनुसार, they knew everything. एक मसाया आएगा जो मेमने की तरह कुर्बान होगा और वो ही हमारा छुटकारा का कारण बनेगा. They knew everything. And according to Moses, according to the prophecies of Daniel, they knew that there will be Messiah who will come and deliver us. पर उन्होंने इस चीज को माना नहीं. But still they didn't believe on it. उनका बिजनेस खत्म हो रहा था. Because their business was ending. हाँ, जोर दी. आज पता है कि पास्टर्स, आज कलीसिया जब बढ़ती है खुश नहीं होते कई लोग. You know that when the church is growing, other people are not happy. नहीं, ग्रोइंग नॉट इन नंबर्स, क्वालिटी में ग्रो होते हैं. जब When अनॉइंटिंग में ग्रो होते हैं. when the church is growing in quality and anointing, other people are not यार happy. मैं पादरी ये ना बन जावे. If I'm a pastor, if he's going to be then,
हाँ जी सिस्टर जी, वेरी गुड। चलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। खुदा कहता है मैं तो अपना आत्मा तुम्हें दोबारा देता हूँ। God is saying that I give you तुम my दोबारा spirit तगड़े बन सको। so that you will be stronger. Somebody say, जोर से बोलो। This is the important message of resurrection. ये point को बड़े ध्यान से सुनना है। Just give importance to that point because this is very important. Who is the son of God? कौन है खुदा का बेटा? Jesus, तुसी नहीं हो? Are you son of God? Hallelujah. जोर दी बोलो। परमेश्वर ने तियां पुत्र होने का हक दिता। Did he give you a right to be a sons and daughters? कब बनते हो आप परमेश्वर के बेटा बेटी होने का हक कब मिलता है? When do you become a son and daughter of God? ध्यान सुन, जब आप बाप बेटे पाक रूह के नाम में बपतिस्मा लेते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बेटे बेटी होने का हक देता हूँ। When you are baptized in the name of Father, Son and Holy Spirit, then God says that I give you right to be my son and daughter. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सर्वेंट होने का हक देता हूँ। And he says that I give you right to be a servant. जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं वो सर्वेंट बनते हैं, अपोस्टल बनते हैं, प्रॉफिट बनते हैं। हालेलुया। The one who take baptism of spirit, they are apostles and all the servants वो of God. गैर जुबानों में प्रार्थना करने वाले बोलेंगे हालेलुया। They speak in tongues. वो आप जहाँ पे खड़े हो जाएंगे वहाँ पे रूह की बारिश होगी, बोलो Where they हालेलुया। will stand, there will be a Holy Spirit raining. जोर से बोलो। The problem is here is very, very simple because if we are a son of God, if we are the son and daughter of God, it means हमारी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। मसला सीधा सा है कि अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं तो हम then we have some responsibilities on us. अक्सर होता है ना, बच्चे माँ बाप की नसीहत को नहीं समझते, बस वसीयत को याद रखते हैं। Sometimes it has happened that people they do not listen Understanding the teaching. The teaching from their parents, but they remember what the last words of their parents. No. They understand what kind of property they have. पैसा कितना है ना को बोलो जोर दी बोलो। नसीहत को कोई नहीं जानता, वसीयत सब जानते हैं। मिन्नू कितना मिलना है तो They don't care about the teaching, but they care about the wealth their parents have, that what will they get. जोर दी बोलो हालेलुया। नसीहत कोई नहीं समझता, वसीयत याद रखते हैं सभी। No one understands the teaching, but they deed. If you are a son of God, अगर आप खुदा के बेटे हैं, if you are a daughter of God, अगर आप खुदा की बेटी हैं, महीने में 5 उपवास होने बहुत जरूरी हैं आपके। There must be 5 fastings in month at least. जोर से बोलो। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या किया? When Jesus got baptized, what did he do? ਕੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਸਟ? Pastor, how can we do that? It's very hard. बहुत मुश्किल है हमारे लिए। Very hard. बहुत मुश्किल है हमारे लिए। किसी बंदे का बटुआ गवा जाए 2 दिन रोटी नहीं खाता हो। If someone lost his wallet, he cannot eat for 2 days. वो जायज है यार, दुखी है मैं की And it is valid because I am sad. है ना। किसी का हस्बैंड छड़ के चल जावे, दी वाइफ छड़ के चल जावे, बॉयफ्रेंड दी गर्लफ्रेंड छड़ के चल गए, गर्लफ्रेंड दा बॉयफ्रेंड छड़ के चल रहे, हफ्ता रोटी नहीं खाएंगे। If the husband is forsaking you, wife is forsaking you, boyfriend or girlfriend is forsaking you, you will not eat for a week. बिजनेस में लॉस हो जाए तो मैंने तो भूख ही मर गई मेरी तो। If you have a loss in a business, then you are saying that my hunger is gone. हाँ जी। Fasting it's very hard. I'm not a pastor. रोजा रखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं पास्टर नहीं You are a pastor. आप पास्टर हो। I give you my tithe. मैं आपको टाइट दूंगा। मैं ऑफरिंग देता हूँ। मैं ऑफरिंग दूंगा। दुआ करया करो मेरे लिए। Pray for me. हाँ भैन जी थैंक यू। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਖੜਾ ਮੈਂ। थैंक यू। जोर दी बोलो हालेलुया। और जोर दी बोलो हालेलुया। You know, this is the logic behind हमारी thought का logic है. And then when you think that we want to be a son and daughter of Jesus Christ, और ये हमारी सोच है, और फिर हम कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और बाद में दावा हम ये करते हैं, प्रभु जी I want to be a servant of God. And still we proclaim that हम खुदा के बेटे हैं। अगर if you want to be a servant of God, महीने में 12 उपवास होने बहुत जरूरी हैं आपके। अगर आप खुदा के खादिम होना चाहते हैं, then there must be 12 fastings a month. वो son of daughter के लिए है, सर्वेंट के लिए 12 चाहिए। Because 12 is a defined number in the scripture mentioned for the disciples. कलाम मुकद्दस में 12 का हिस्सा उसके शागिर्दों के लिए खास चुना गया है। हम केड़ी बरकत चाहिए है? What kind of blessing do you want?
ना ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ 12 ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ We are not among 5 of them, we're not 12 क्रिश्चियन है पास्टर जी ये पता है सर्टिफिकेट है हमारे पास ये पता है ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए ये पता है बट इसमें से कोई भी नसीहत वाली बात नहीं चल रही है Pastor, we are Christian, we are attached with God, but there is not any deed we are following on. ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ Everyone knows what Jesus deeds is. ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ ਨਸੀਹਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ We'll go to Jesus Christ's home, we will get children home and all the blessings. ਚਰਚਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮਿਰਕਲਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸਾਰਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਆ ਸਾਰੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਾਲੇਲੂਇਆ And everyone is coming to church just to get wealth and money, but no one is here to take care about the teachings. if you're ready to walk according to the scripture let me tell you ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਡ ਬਣੋਗੇ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और अगर आप कलाम के मुताबिक चलने के लिए तैयार हैं, then you will be head, always not be a tail. अगर आज से अगर आपके उपवास नहीं शुरू हुए तो समझ लो मैं आपको बताना चाहता हूं आप किसी गिनती में नहीं खड़े होते हो If from today your fasting won't start, then remember that you are not कैद जुबान में आपकी प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है There must be a prayer in tongues. वचन में लिखा वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जो जल और आत्मा से जिसका बपतिस्मा होगा Only that person will be going to the heaven who has a baptism with spirit and जीवन की पुस्तक में उसी का नाम लिखा जाएगा only his name will be written in the Oh book of life. somebody say hallelujah just for hallelujah Let me conclude this वचन में लिखा उजाड़ू पुत्र के बारे में प्रोडिगल सन के बारे में लिखा है And I wanna tell you about the proud son. और प्रोडिगल सन के बारे में लिखा उसने अपने बाप को बोला बाप मुझे अपनी वसीयत मुझे दे And it is written that he told his father that father give me your wealth. मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता I don't want to stay with you. जो मेरे हिस्से में मुझे दे दे Whatever is mine, just वो give it. वसीयत लेके चला गया He took the wealth and left. नसीहत नहीं उसे He चाहिए didn't listen about the teachings. आज जितने लोग तुझसे प्रार्थना कराने के लिए चर्च आते हैं मैं बता दूं आप अंधकार में हो If people are here and just for this reason, I want to tell you that you are in darkness. यूजफुल हो जाओ यीशु मसीह के नाम से अगर अदरवाइज शैतान नहीं यूजलेस करता खुदा यूजलेस करता है Be useful in for Jesus Christ because God will make you useless, not set. जिस फेम पर इतना घमंड है जिस बिजनेस पे इतना घमंड है मैं कह रहा हूं वो दिन में ही नीचे आएगा If you have such a pride on that fame, I'm telling you that it will be gone in a day. don't गलत फहमी में मत रहना परमेश्वर का वचन ये बता रहा है हालेलुया जो व्यक्ति फल पैदा नहीं करता मैं उसे यूजलेस करता हूं Don't be dismayed because the word says that one who is not bearing fruit, I will finish him. मत सोचो कि ये गलतियां कैसे होगी मत सोचो कि ये मुझसे काम कैसे होगा बिकॉज आप यूजफुल कभी बने ही नहीं Do not say that why I'm committing those kind of mistakes because you were never ये कितना useful. गलती ना हो गई मिस्टेक्स नेवर हैपन एक्सीडेंटली इट्स विद योर चॉइस गलतियां अचानक नहीं होती है आपकी मर्जी से इट्स होती योर है चॉइस ये आपकी मर्जी से इफ होती यू है आर बाय चॉइस इफ यू हैव डन समथिंग अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ कर लिया बाय चॉइस इफ इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड और आप जाए खुदा की हुजूर में खुदा आपको बाय चॉइस रिहा करता है आज and God will free you by his choice. जोर से बोलो इंटेंशनली सिन एक्सीडेंटली सिन खुदा कहता है मैंने कब्र तोड़कर आया हूं तुम्हें आजाद करूंगा आज And he says that not by accident I have broken that tomb and I came to free you. somebody say hallelujah जोर से बोलो हालेलुया ओ जोर से बोलो वचन में लिखा उसने अपने बाप की वसीयत लेके चला गया And he took his father's money and left. जो लेके मिरेकल्स लेके चले जाते हैं उनका हाल बहुत बुरा होता है The one who leaves those taking those miracles, they are बिकॉज़ वचन कहता है संभालने की जो सलाह है वो सिर्फ वचन देता है वचन पे जिसका ध्यान नहीं है वो टूट जाता है because the word says only that person who takes about the word can carry that blessing. वचन में लिखा जब उसके पैसे खत्म हुए And the word says that when he lost his money, सूरों के साथ सोना पड़ा उसे he was sleeping with pigs, सूरों का खाना खाना पड़ा eating with pigs. जानवरों की तरह हालत हुई He was living like animals. फिर वो अपने बाप के पास गया पहुंचा Then he ran back to his father. उन्होंने कहा नसीहत ही चंगी सी वसीयत ना तो कुछ नहीं बने That his teaching was good. I couldn't do anything with मेरे it. बाप की नसीहत ही अच्छी थी My father's teaching was good. मैं आपको बता रहा हूँ आपके माँ बाप की इज्जत करो अपनी I tell you that respect your parents. जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो अपने परमेश्वर की इज्जत नहीं कर सकता The one who cannot respect their parents जो cannot अपनी respect God. जुबान अपने माँ बाप के सामने ऊंचा कर दे समझ लो आपका डाउनफॉल शुरू होता है The one who raised their voice in front of their parents, remember then your downfall चाहे is जितने started. मर्जी अच्छे क्यों ना हो जितने मर्जी पवित्र क्यों ना हो जितने मर्जी बड़े पासवान क्यों ना जो पास्टर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता कभी ऊंचा नहीं होगा If the pastor is so high and is so honored, if he is not honoring his parents, he is never been exalted. somebody से ये मेरा वचन नहीं है खुदा का वचन है बोलो This हालेलुया is not my word, it is God's जोर से word. बोलो हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया
वो अपने बाप के पास पहुंचा, he went back to his उसने father कहा पिता मुझसे गलती हुई, and said, Father, I did mistake. आज के बाद मिरेकल्स के लिए नहीं, मैं ब्लेसिंग के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद तेरे वचन के लिए चर्च आऊंगा मैं। I will not come for the miracles and blessings, but I will come for you. मैं आजाद हूँ, Because I'm free. I'm free, I'm free. I'm free, मैं आजाद हुआ. I'm free, मैं आजाद हुआ. Are you with Jesus? Hallelujah. Are you in the relationship with Jesus? क्या आप यीशु के साथ रिलेशन में हैं? जोर से बोलो, give a new start, एक नई शुरुआत कीजिए. इसी वक्त दे। Right now. Are you ready for this? क्या तैयार हैं आप? Are you ready for this? तैयार हैं आप? Let me tell you, this is an important message. Are you ready for this? Resurrection उनके लिए है जो ready हैं आज। Hallelujah. Resurrection is for those who are ready. Decide कर लिया है जिन्होंने, उनके लिए resurrection है आज। The one who has Hallelujah. decided this resurrection is yours. मैं ऊंचा हुआ, मेरा परिवार ऊंचा हुआ, मेरी बेटी ऊंची है, मेरी वाइफ ऊंची हुई है, मेरा खानदान ऊंचा, मेरी कलीसिया ऊंची है। मैं blessed हूँ, आप भी blessed हो। I am Hallelujah. lifted up, my family, my daughter, my wife, and my church is blessed. You are blessed people. Somebody say hallelujah. Are you free? Are you free? Are you free? Hallelujah. जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जल्दी से hallelujah. Just give a glory to God. Hallelujah. I want you to stand. जल्दी से. Oh, Rabba Sadori Khoda Rabba, hallelujah. You are a chosen vessel of a living God. Lift up your hands towards the Lord. Oh, Rabba Si. Oh, Ramana Sadora Kyodora Rabba, hallelujah, 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 Harabaso. Hori and Rabba Sakra Rabba, hallelujah. Thank you, Father. This time, खुदावंत तू ऊंचा करने वाला परमेश्वर, बरकत देने वाला परमेश्वर। कहो खुदावंत से, खुदावंत मैं डिसाइड कर रहा हूँ और मैं ऊंचा होता हूँ और तेरे नाम को ब्लेस कर। Confess in the name of Jesus. Say, God, I'm blessed tonight. जितने चार्जेस तुझ पर थे मेरी शिफा के लिए थे, मेरी चिंगाई के लिए थे, मेरे छुटकारे के लिए थे, आज मैं आजाद हूँ। तेरा वायदा मेरे साथ है। Get back to your positions. Get back to the first love that you give to the Lord. And God is going to restore you tonight. Restoration is your part. It happens in the name of Jesus. God bless them. Use them in a mighty way. In Jesus' mighty name, everyone will say. Everyone will say. जोर से बोलो हालेलुया। मुझे ताड़ी यीशु मसीह के नाम से। आपके चेहरे कभी मायूस ना हो। घर में जाना कहना, खुदावन जो मैं पब्लिकली हूँ मैं प्राइवेट में भी वही हूँ। मैं प्राइवेट में भी खुदा तेरा हूँ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बैठ सकते हैं। हालेलुया। जल्दी से बैठ जाएं। We have a special song in our midst right now. Brother Ajaz, जल्दी से आ जाए। जल्दी। It's a special song, we have it, and after that we will take the offering also. This is an Easter special song, and Brother Ajaz has a very good song. He sings so well. Jodi taadi bajao. He will sing one song, and I really want कि आप गीत को सुने। खुदावन ने इनको bless किया है और परमेश्वर इनको और ऊंचा करता है और हम चाहते कि ये गीत ये गाएं और हम सब सुनेंगे। प्रेज़ गॉड। हाँ जी नहीं Hallelujah. Today is the day of happiness. I wish you, everybody, very, very happy Easter. Because the Son of God has risen from the dead. He is a superpower. और इससे पहले कि हम गाना शुरू करें मैं एक शेर बोलता हूँ। जदों दित्ती जान सलीब ते यसू, ध्यान से सुनो। जदों दित्ती जान सलीब ते यसू,
हैकल दा पर्दा फट गया जदों फतह पाई मौत ते यसू कब्र तो पत्थर हट गया। आज पत्थर जो है वो हट चुका है, उसको किसी ने नहीं हटाया, वो अपने आप हटा। और गाना शुरू करने से पहले कुछ बोल है। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्मद करते हुए उसकी बारगाह में उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। शुक्र करा मैं तेरा यसु तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मैं तेरा यसु तेरा शुक्र करा, दिन रात करा मैं सुबह शाम करा मैं दिन रात करा मैं सुबह शाम करा मैं तेरा यसु तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मैं तेरा यसु तेरा शुक्र करा। साडे लई तू दुख उठाया, नेज़ा फसली दे विच खाया। साडे लई तू दुख उठाया, नेज़ा फसली दे विच खाया। कंडियां दा सिर ताज तू पाया, अपने लोगां नू बचाया, अपने लोगां नू बचाया। मुक्ति मिल गई पापा तो मैनू, मुक्ति मिल गई पापा तो मैनू, तेरा शुक्र गुजारा यसु तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मैं तेरा यसु तेरा शुक्र करा। पापियां नू गल नाल लाउंदा, रोगियां दे रोग मिटांदा, रोगियां दे रोग मिटांदा। ओ है साडे नां दी ज्योति, फैज़ है समझावदा, फैज़ है समझावदा। मुक्ति मिल गई रोगा तो मैनू, मुक्ति मिल गई रोगा तो मैनू, तेरा शुक्र गुजारा यसु तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मैं तेरा यसु तेरा शुक्र करा। Praise God. Let's pray for this offering also. Let's pray for tonight. I believe the God has really touched your lives tonight. Hallelujah. कितने लोग आजाद हैं आज? कितने लोग आजाद हैं? पवित्र रिश्ते को बना के रखना अपने जीवन में। पवित्र रिश्ता जिसके पास होगा खुदा उससे बात करेगा। आत्मिक रिश्ते के बीच में बने रहना, आत्मिक रिश्ते के थ्रू ही खुदा बात करता है। बोलो हालेलुया।
जितने आत्मिक रिश्ते बना सकते बनाओ, हालेलुया। जितने मर्जी कॉन्टैक्ट्स आपके पास जितने मर्जी क्यों ना हो, 1000 लोगों के कॉन्टैक्ट क्यों ना, वो समुद्र को नहीं हिला पाते। एक विश्वासी इंसान बोलने से समुद्र 2 हिस्सों में पार होता है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपके आत्मिक रिश्तों में बल है, हिम्मत है, और वही परमेश्वर हमारे साथ है। जोर से बोलो, ये खुशी आपके साथ बरकरार रहे। लेट्स प्रे, लेट्स गिव ग्लोरी टू गॉड। सभी अपने आंखें बंद करें, लेट्स प्रे। सर्वशक्तिमान जिंदा पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावन इस मुबारक समय के लिए, इस खुशी के लिए खुदावन, और इज्जत के लिए खुदावन जो तूने दी खुदावन। तूने हौसला दिया, तूने दिलेरी दी खुदावन कि तूने हमसे बातचीत की, और खुदावन मुझे खड़ा किया, मेरे लोगों को खड़ा किया खुदावन। मैं मांगता हूं इस समय में खुदावन इनके हिस्से की अनॉइंटिंग। अपने हाथों को उठाओ सभी, कहो यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं तेरे मसा में चलना चाहता हूं, तेरी आजादी में चलना चाहता हूं, तेरी में सेवकाई में चलना चाहता हूं खुदावन। चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मैं खुदावन फल पैदा करने वाला हूँ। मैं खुदावन, तूने मुझे आजाद किया, मेरे लोगों को आजाद किया खुदावन। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, और मैं कभी भी पीछे मुड़ के ना देखूं खुदावन। तेरी इज्जत में, तेरी शौहरत में बना रहूं, और तेरा नाम अब से लेके मेरी जिंदगी में ऊंचा हो। हालेलुया। तू ऊंचा करने वाला परमेश्वर, आज के समय में तूने वचन से बातचीत की, तूने बल दिया, हिम्मत दी, तेरे लोगों को ऊंचा किया खुदावन, और इस समय में खुदावन तेरे लोग आजाद हैं, ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। और तेरी खुशी अब से लेके हमेशा इनके जीवन में बनी रहे। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते, सभी बोलेंगे अब पिता परमेश्वर का फजल, फाकरों की हिराकत और शिराकत अब से लेके हमेशा तेरे बच्चों के साथ, तमाम लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। सो लेट योर किंगडम कम, लेट योर विल बी डन इन जीसस माइटी नेम। सो वी विल से, somebody say hallelujah. Just give a clap of the living God. I wish you a very very happy resurrection day in your life. इस खुशी को बांटो और खुशी को बताओ, ये खुशी के बारे में बयान करो कि परमेश्वर ने मुझे खुशी दी है। हालेलुया। So church is end here right now, but we have a fellowship in social room. So after this, हम सभी social room में चलेंगे. Food is ready, so please partake in food and greet each other. Before that, there's the update news is there. We are going to come up with a grand outreach. We're going to have 2019 Masihi Mela. Hallelujah. This time it would be a grand, this time it would be a big, and we are praying for it, and I really need your prayers. ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ 'ਚ ਰੱਖੋ इसनू। हम एक ग्रैंड मसीही मेला करने जा रहे हैं। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा ऐलान जो जीत के बारे में बताता है, खुशी के बारे में बताता है, मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में बताता है, वो ऐलान होने जा रहा है। हालेलुया। हर साल जब भी हमने ये मेला हुआ, हर साल हमें आज़ादी मिली है, हर साल खुदावन ने रूहें बचाई हैं, आज भी रूहें पीछे बैठी हैं। बोलो हालेलुया। ये वो वायदा है, परमेश्वर ने कहा जब जब तू बोलेगा तब तब मैं अपना स्वर्ग खोल दूंगा तेरे लिए। अगर सच्चाई के साथ खड़े हो, अच्छाई को छोड़ दो, सच्चाई में चलो, अब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको मुबारक करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। सो कीप प्रेइंग। सो वी विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन, ऑल अपडेट्स आपको मिलेंगे। जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो डाउनलोड करो, रेया फॉर पंजाबी चर्च एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस पर सभी अपडेट्स आपको मिलेंगे। और इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन अस ऑन वेबसाइट, हमारी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हो www.rayofhopechurch.org। हमारा मसीही चैनल rabnalmil.tv इज रनिंग, इट्स लाइव वर्शिप गोइंग ऑन। इफ़ यू रियली वांट टू बी गेट कनेक्टेड लाइव, आप लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो, पर मेक श्योर दिस टाइम इट वुड बी अ बिग। हालेलुया। खुदा ने हमें बहुत ब्लेस किया, मैं कहता हूँ बहुत ब्लेस किया। मैं कहना रब ने मैंने बहुत ऊंचा किया। बोलो हालेलुया। ओ जोर दी बोलो हालेलुया। किसी चीज की थोड़ नहीं है, जोर दी बोलो हालेलुया। और वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। ये ग्रैंड होगा, ये बड़ा होगा, और ये बहुत बड़ी जीत का ऐलान होने जा रहा है। हालेलुया। तो उससे पहले देयर इज समथिंग अ प्रेयर, बिकॉज़ आई रियली वांट टू प्रे फॉर सिस्टर एवलिन। सिस्टर एवलिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शी इज नॉट फीलिंग वेल, उनकी अभी हार्ट रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। उन्होंने कॉल मॉर्निंग में किया था, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं मानती, मैं अपने परमेश्वर को मानती हूँ। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मैं कहता हूँ आज ही मैं रिपोर्ट कैंसिल करता हूँ। आपकी बेटी अगले संडे गवाही देगी, आपकी बेटी ऊंचे स्वर से गवाही देगी। Somebody say, जोर से बोलो
अपने हाथों को उठाओ, लेट्स प्रे। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता खुदावन, इस समय में खुदावन मैं तेरी बेटी को उस रिपोर्ट से आजाद करता हूं। हालेलुया। आई कैंसल द रिपोर्ट जिसमें नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं जो बताई जा रही हैं। तेरी बेटी मुश्किल में है, दुविधा में, परेशानी में है, वो लानत में, मैं उस सब को झूठा ठहराता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हर मुश्किलें, हर बत्तियां खत्म होती। हालेलुया। और तेरा नाम अब से लेकर हमेशा ऊंचा हो। खुदा मैं मांगता तेरे बच्चे नूर के लिए, उनकी मम्मी के लिए, सभी अपने हाथ उठाएं। हालेलुया। इनके लिए प्रार्थना करें खुदावन यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ये चैलेंज जो इनकी जिंदगी में है, धर्मी व्यक्ति परखा जाता है और वो इज्जत से ऊंचा होता है। यीशु मसीह के नाम से तेरे बच्चे नूर को तो ऊंचा कर, ब्लेस कर और ऊंचा कर। हालेलुया। वो तेरा सेवक बना है। हालेलुया। कोई उसे नीचा ना कर सके। उसकी मम्मी के लिए मैं मांगता खुदावन, डॉक्टर चाहे जो मर्जी बोले, बोलो आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कैंसल करता हूं रिपोर्ट्स को इसी वक्त। खुदावन ये रूह गवाही देने वाली बने, ये रूह नाचने वाली बने जैसे दाऊद नाचता था, और खुदावन तेरी मसा में चलने वाले बने। और खुदावन मांगते ब्रदर नॉरिस के पापा के लिए खुदावन तूने फिर दोबारा हमारे बीच में लेकर आया यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ये आजादी का चिन्ह है, ये निशान है, ये गवाही बनी रहे। और खुदावन 2020 में ये अपने पैरों पे चल के चर्च आएंगे अब। हालेलुया। ये ऐलान है, ये पूरा विश्वास है कि परमेश्वर जो बोलता पूरा करता है। आने समय में सिस्टर सुंबल के लिए जो उनकी डिलीवरी का डेट है, यीशु मसीह के नाम से वो डिलीवरी ठीक तरीके से हो। वो अमोस प्रॉफिट इस दुनिया में आ रहा है। हालेलुया। वो इस रुतबे के साथ, इज्जत के साथ आए और तेरी खुशी उनके बीच में बनी रहे। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते हैं। सभी बोलेंगे, जोर से बोलो। Just give a clap of living God. Hallelujah. So may God bless you. May God use you in a mighty way. So every Sunday 4 to 6. Every Sunday 4 to 6. So start getting into the presence of the Lord. Hallelujah. So we're coming with a more fasting prayer also, and this time we're going to do the all-night prayer also. Hallelujah. हम fasting prayer में शुरू करने जा रहे हैं. Bible study will start every Friday. Okay, sister Sushma's house. Hallelujah. So every Friday Bible study. So get into the touch with the Lord. Hallelujah. एक deep knowledge में चलेंगे हम. खुदा आप सबको bless करे, मुबारक करे, खुशी के साथ जाएं और खुशी को बांटते रहे. God bless you. See you next time. May you have a blessed week ahead. God bless you. Bye bye.